here we all know that prenatal development is the development area in which the fetus is developing. So here my topic is what is Rh factor. So let me tell you about Rh factor. So Rh factor is a rhesus factor, is an inherited protein found on the surface of red blood cells. If your blood has the protein, you're Rh positive, and if your blood lacks the protein, you are Rh negative. So in a simple term, that if your blood is full of protein, then you are Rh positive, and if you lack from with that protein on the surface of your red blood cells, you are Rh negative. Rh positive is the most common blood type. Although Rh positive is the most common blood type, having an Rh negative type does not indicate illness and usually does not affect your health. So having an Rh positive or Rh negative blood type, it doesn't affect you as a person. So what in a very substitute form, let me tell you about Rh factor, which is known as the rhesus factor. Another type of protein. It is a type of protein antigens present in the red blood cells, named after the rhesus macaque. Rh positive means antigen is present, and Rh negative means antigen is absent. Rh negative does not have Rh antibody naturally. सो जो नेगेटिव होते हैं आरएच नेगेटिव के जो लोग होते हैं उनमें जो आरएच एंटीबॉडी होती है वो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती है एज कम्पेयर टू आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पीपल. सो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव, जिस ब्लड ग्रुप पे हमारे पॉजिटिव आ जाता है वो सारे आरएच पॉजिटिव की कैटेगरी में आते हैं. एंड द ब्लड ग्रुप विच हैज नेगेटिव आफ्टर दैट दे कम इन द कैटेगरी ऑफ आरएच नेगेटिव. So let me tell you about why is Rh factor important. अब ये factor important क्यों है? तो it is one of the proteins on RBCs used to indicate whether the blood of two different people is compatible when mixed, such as blood group of mother and her baby at the birth. So Rh factor important इसलिए ताकि हमें मालूम पड़े कि एक blood group का person दूसरे blood group के साथ compatible हो सकता है कि नहीं. Because Rh positive person can only give the blood to the Rh positive person, not to the negative person, because they have different antigens. It is a same apply in the terms of when a mother is conceiving a baby. If a baby have a different Rh and the mother have different Rh factor, they will face problem. It is routine and important that the Rh factor for a mother and an unborn child be determined during the pregnancy. मतलब हमको जो RH फैक्टर है वो प्रेगनेंसी के बिफोर प्रेगनेंसी हमें मालूम होना चाहिए that what is the RH factor. If an expecting mother is RH negative and the baby is RH negative, there aren't usually any concerns. So if the mother and the baby both have the RH negative or RH positive, there are not any concerns. Conversely, अगर इसके अपोजिट देखा जाए तो अगर if the expecting mother is RH negative and her baby is RH positive, the mother blood might produce the anti-D antibodies because RH जो नेगेटिव है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते नेचुरली, जो कि नेगेटिव वाले RH नेगेटिव नहीं कर सकते, RH पॉजिटिव कर सकते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस. सो जो RH नेगेटिव है, जब मदर इज RH नेगेटिव एंड द बेबी इज RH पॉजिटिव, द मदर ब्लड माइट प्रोड्यूस द एंटी-D एंटीबॉडीज बिकॉज हम मदर का जो ब्लड है वो उस ब्लड ग्रुप के लिए उसका ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज द blood of the baby and the blood of the mother are different, have different antigens. The effect of these antibodies on the development of the unborn child who is RH positive, और ये इफेक्ट कर सकता है उनको बहुत डिफरेंट तरीके से, जो हम लोग अभी आगे स्लाइड्स में देखेंगे. There are medical intervention that can take under supervision of the physician to protect the baby in utero. Basically कहा जाता है कि बच्चा प्लेसेंटा में होता है, बट ड्यू टू सम टाइम जो ब्लड है वो through different procedure when the mother is giving birth or something, वो उस प्रोसेस के टाइम पे वो मतलब एक तरह से वो ब्लड दोनों का मिक्स हो सकता है, जिसकी वजह से मदर या बेबी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर. तो एक जो फिजिशियन है उनके सुपरविजन में अगर ये सब चीजें होती है, दिस कैन माइट बी क्योर्ड. और सेम RH फैक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें जो ब्लड डोनेट करते हैं हम, तब हमको एक हमारा RH फैक्टर डिटरमाइन करता है बिकॉज अ पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल अ पॉजिटिव डोनर कैन गिव द ब्लड टू द पॉजिटिव डोनर. तो दिस इज द थिंग. एक नेगेटिव डोनर पॉजिटिव डोनर को ब्लड दे सकता है, बट एक नेगेटिव को दे सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता है. दिस इज द थिंग, क्योंकि हमारा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के डिफरेंट एंटीजेंस है
और नेगेटिव ब्लड ग्रुप के डिफरेंट एंटीजेंस हैं। अब आते हैं व्हाट इज RH इनकम्पैटिबिलिटी। हमने टॉक अबाउट RH कंपैटिबिलिटी कि अगर दोनों ब्लड ग्रुप सेम होते हैं तो अच्छी सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बेसिक रहेगा, हम नॉर्मली ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं, अ मदर कैन कंसीव अ बेबी हेल्थीली। बट इफ इन द केस वेयर RH इज इनकम्पैटिबल, तो वो क्या होता है, जब मदर RH इनकम्पैटिबल इज अ कंडीशन जब मदर डेवलप करती है, the mother develops when a pregnant woman has RH negative blood and the baby in the womb has RH positive blood. When the blood groups are different, the antigens are different, तब incompatible वो blood group कहलाया जाता है. When a mother to be and a father to be are both positive or negative for the RH factor, it is called the RH incompatibility. When a mother to be and father to be are both positive or negative, मतलब या तो दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इस केस में जो बच्चे का RH फैक्टर है वो डिफर कर सकता है. If a woman who is RH negative and for example, if a woman who has RH negative and a man who is RH positive conceive a baby, the fetus may have RH positive blood inherited from the father. Excuse me. तो सॉरी मैम, इफ अ वुमेन इज RH नेगेटिव, तो उसमें क्या होता है कि जो फादर का ब्लड अगर RH पॉजिटिव है और मदर का ब्लड RH नेगेटिव है, इफ दे बोथ कपल प्लान टू हैव अ बेबी, सो इन केस इनहेरिटेडली जो 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 फीटस का ब्लड ग्रुप है वो चेंज हो सकता है, वो RH पॉजिटिव हो सकता है, एंड दैट कैन कॉज अ इनकम्पैटिबल सिचुएशन इन बिटवीन द ब्लड ग्रुप्स, इन बिटवीन द मदर एंड द फीटस. सो हाउ डज RH फैक्टर अफेक्ट प्रेगनेंसी? अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी को कैसे इफेक्ट करती है ये चीज. अब पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल आफ्टर योर ब्लड ग्रुप इंडिकेट्स योर RH फैक्टर. हमें ये बात अभी तक डिसाइड हो गई कि द ब्लड ग्रुप के आगे हमारा जो पॉजिटिव लगता है, ए बी पॉजिटिव या ए पॉजिटिव, दैट डिफाइंड अस कि हमारा RH फैक्टर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. फॉर एग्जांपल, तो अभी प्रेगनेंसी पे कैसे इफेक्ट करता है? If a woman is RH negative and the baby is RH positive, then the woman body will approach the RH positive protein as a foreign object. Because दोनों ब्लड ग्रुप डिफरेंट है और दोनों ब्लड ग्रुप एक दूसरे की बॉडी में जब जाएंगे तो वो डिफरेंट एंटीजेंस प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से दोनों रादर द मदर or the fetus can have a problem. So there in this line there the woman body will approach the RH positive protein as a foreign object. तो जो RH पॉजिटिव का प्रोटीन्स होंगे और फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह करेंगे, इम्यून सिस्टम जो है क्योंकि उससे एक्सपोज नहीं है, तो जो मदर का इम्यून सिस्टम है वो उससे एक्सपोज नहीं होगा, तो मदर्स को काफी सारी डिफिकल्टीज हो सकती है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी. This means that if a blood cells of your baby cross your bloodstream, which can happen during pregnancy, labor, and delivery, your immune system will make antibodies against your baby red blood cells. So, because you have a RH, because the mother is having the RH positive, RH negative blood, and the baby is having the RH positive blood, so बिकॉज RH पॉजिटिव ब्लड्स के एंटीजेंस अब RH नेगेटिव मदर के लिए फॉरेन होंगे, तो उनकी जो ब्लड उनका जो ब्लड होगा, उनका जो इम्यून सिस्टम होगा, वो एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा उनके बेबी के अगेंस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब दोनों ब्लड एक दूसरे से मिक्स होंगे. एंटीबॉडीज आर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इम्यून सिस्टम, दे डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस. सो यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं कि एंटीबॉडीज होती क्या है. बेसिकली ये पार्ट होता है बॉडी के इम्यून सिस्टम का, जो हमारे बॉडी में कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट हमारे सब्सटेंस आता है हमारी बॉडी में, तो उसको खुद ही वो कोप अप करने की कोशिश करता है. So if you have a RH negative blood type, you are considered sanitized to positive blood types once your body has made these antibodies. So it means कि अगर आपके पास RH negative blood type है, तो आपके ब्लड में कैपेबिलिटी है कि वो सैनिटाइज कर सकता है RH पॉजिटिव ब्लड को अपनी एंटीबॉडीज बनाकर. So this means that your body might send these antibodies across the placenta to attack your baby red blood cells. So प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ये आती है कि जब RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का बेबी होता है और मदर RH नेगेटिव होती है, तो RH नेगेटिव मदर के जो एंटीबॉडीज हैं वो प्लेसेंटा के आसपास एक ऐसी लेयर फॉर्म कर लेते हैं to kill that different antigens to different blood group. So this can cause your placenta is this can cause different kind of jaundice and other abnormalities after during the pregnancy. So symptoms. Now we talk about symptoms of RH incompatibility. That how a mother
कंसीव्ड प्रेग्नेंट मदर नो कि इनकम्पैटिबल कैसे है उनका ब्लड ग्रुप. So RH incompatibility symptoms is your unborn baby can range from mild to life threatening. तो ये जो सिम्टम्स है वो बहुत माइल्ड हो सकते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं अगर उसको हम लोगों ने सही मेडिकल केयर नहीं दी तो. सो व्हेन योर एंटीबॉडीज अटैक योर बेबी रेड ब्लड सेल्स, हेमोलिटिक डिसीजेस. अब ये डिसीजेस एग्जांपल जॉन्डिस, एनीमिया, ये डिसीजेस जो कैटेगरी में आते हैं वो सब इसकी वजह से इनकी आते हैं जब आपका हीमोग्लोबिन या आपका बॉडी का जो ब्लड्स है वो मिक्सअप होते हैं, तो वो जो कैटेगरी की डिसीजेस उनकी वजह से पैदा होते हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं. Can occur. This means your baby red blood cells are destroyed. It means because of course life threatening इसलिए दो different blood cells आपके मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो बेबी का ब्लड सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. So when your baby's healthy red blood cells are destroyed, bilirubin will build up in their bloodstream. तो जब आपके बेबी की जो हेल्थी रेड ब्लड सेल्स हैं उन वो डिस्ट्रॉय होंगे तो एक बिल्बिन करके केमिकल होगा जो कि उनके ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होगा. So bilibin is a chemical that created from the breakdown of red blood cells. Too much bilibin is a sign that the liver, which is responsible for processing old blood cells, is having trouble. So because directly your blood affect your whole immune system, whole processing of heart, lungs, liver. So this can cause a serious trouble if it is not if it is not concerned. It can cause serious trouble to the baby. So your baby, अब problems क्या हो सकती है? Baby have one or more following symptoms. in जो बिल्बिन लेवल जो केमिकल होगा उसके थ्रू जो प्रॉब्लम्स हो सकती है. अगर वो लेवल हाई हो गया तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, और वो लेवल अगर नॉर्मल रहा, मॉडरेट रहा, तो वो चीजें कंसर्न की जा सकती है. तो जॉन्डिस हो सकता है आफ्टर गिविंग बर्थ और while having the conceiving the baby. जॉन्डिस की वजह से मदर कैन आल्सो हैव जॉन्डिस. लिथार्जी, लो मसल लिथार्जी इज अ टाइप की बच्चा बहुत सुस्त है एकदम, not active in that condition. Low muscle tone, that he is not in the same way. जो उनका मसल का टोन है, काम करने की पावर है, वो बहुत कम होगी. In the same sluggishness आएगी, and they will be not active as a normal baby. These symptoms will subside after completing treatment of RH incompatibility. So this is the symptoms of jaundice, in which yellowing of eyes, yellowing of skin. बिल्बन आपके ब्रेन टिश्यूज में भी इम्प्लांट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं आपका मतलब एक बेबी को ब्रेन डैमेज भी हो सकता है इन अ सीवियर केस. एंड इन दिस जब लिवर में डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर बिल्बिन लेवल बढ़ जाएगा बच्चे का, केमिकल का लेवल बढ़ जाएगा, तो दिस कैन कॉज स्वेलिंग अराउंड द लिवर एरिया, एंड इसकी वजह से बेबी का जो एब्डोमेन है वो बहुत स्वेलिंग शो होगा. तो अब ये एक प्रॉब्लम बिकॉज मालूम पड़ा कि भाई RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, तो उससे मालूम पड़ा कि भाई ये चीजें हो सकती है, सिम्टम्स है उसके कि भाई जॉन्डिस हो सकता है, बिल्बिन लेवल बढ़ गया तो इट कैन कॉज अदर थिंग्स. तो इसकी वजह से व्हाई RH इनकम्पैटिबिलिटी इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ दिस. When the blood of an RH positive fetus get into the bloodstream of RH negative woman, her body will recognize that RH positive blood is not hers. Her body will try to destroy it by making an anti-RH antibodies. These antibodies can cross the placenta and attack the fetus blood cells. Because same बात है, this can go in a two way. अगर दो मदर का ब्लड सेल डिफरेंट है और बच्चे का ब्लड सेल डिफरेंट, ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, so this can cause problem in the both ways. जिसका बिकॉज अब नेगेटिव जो है उनके पास नेचुरल एंटीबॉडीज होती है, they can create a high amount of antibodies. This can lead to serious health problems, even death of the fetus or the newborn, because blood different है. तो दिस कैन कॉज प्लेसेंटा के आसपास जो है वो दूसरे ब्लड सेल्स अटैक करेंगे, जिसकी वजह से इन द वर्स्ट केस अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, टाइम पे मालूम नहीं हुआ, so this can cause the death of the fetus or the newborn. So how RH antibodies develop? This is during pregnancy. A woman and her fetus usually do not share blood, because एक normal pregnancy में placenta की layer होती है. Because of that, जो blood है वो share नहीं हो पाता है. But sometimes a small amount of blood from the fetus can mix with the woman's blood. In some cases, जो fetus का blood है वो mother के उससे blood से मिल जाता है. This can happen during labor and birth.
जब बर्थ और लेबर हो रहा है उस टाइम पे ये चीजें हो सकती है। तो इसके अंदर एमिनोसेंटिस और क्रॉनिक वायरस सैंपलिंग, ये सीवीएस करके एक चीज है जो मतलब करवाई जाती है, ताकि देखा देखा जाए कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लेसेंटा की कोई लेयर हार्म तो नहीं है। उसके बाद में आता है ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से उनका प्लेसेंटा में उसका ब्लड मिक्स हो सकता है, ये जो एंटीबॉडीज है वो डेवलप होगी तभी मतलब फीटस को प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बट एंटीबॉडीज डेवलप होने के ये कारण है जिसके अंदर से सीवियस ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, attempts to manual turn of fetus so he or she is head down for birth, during डिलीवरी टाइम, जब फीटस का हेड है अगर वो सही सही पोजीशन में नहीं होता है तो मैन्युअली उसको किया जाता है, जिसकी वजह से भी ये चीज हो सकती है। और ड्यूरिंग एक्सीडेंट, जब लोअर एब्डोमिनल में ट्रॉमा की वजह से इफ सम एक्सीडेंट हैपन और उनका लोअर एब्डोमेन में कुछ प्रॉब्लम आई और जिसकी वजह से उसकी प्लेसेंटा की लेयर के अंदर दूसरा ब्लड सेल गया, तो वो एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं वहां पे, देन दिस कैन कॉज प्रॉब्लम। Here we know when do Rh antibodies can cause problems. So here we are clear about this point कि health problems usually do not occur during an Rh negative woman first pregnancy. So वो प्रॉब्लम कब कॉज हो सकती है? फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे ये प्रॉब्लम बहुत ही रेयर देखी जाती है, बिकॉज उस टाइम तक इतनी एंटीबॉडीज हमारे ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो एक फर्स्ट प्रेगनेंसी इजी गोइंग हो जाती है। This is because our body does not have a chance to develop a lot of antibodies. But if a treatment is not given during the first pregnancy and the woman later gets pregnant again, and then Rh positive fetus with same process अगर वापस होता है, अगर उनका ब्लड ग्रुप Rh पॉजिटिव होगा वापस फीटस का, तो शी कैन मेक मोर एंटीबॉडीज, और जो पहले की एंटीबॉडीज है और जो अब वापस एंटीबॉडीज बन रही है वो फ्यूचर फीटस को रिस्क पे ला सकती है। सो देखा गया है कि ये प्रॉब्लम एंटीबॉडीज जो आरएच की है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है सेकंड प्रेगनेंसी में इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है during the pregnancy if you are having if your mother and the fetus having different RH factor. So severe cases in which the effect the RH incompatibility aren't prevented, सीवियर केसेस में ही प्रिवेंट नहीं हो पाती, बाकी तो वो चीज प्रिवेंट हो जाती है, कैन रिजल्ट इन सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। दीज कॉम्प्लिकेशंस में इंक्लूड ब्रेन डैमेज टू द बेबी, बिकॉज ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो ब्रेन के थ्रू फ्लो हो रहा है, और जो जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव शोन इन दिस स्लाइड, जो ये बिलबिन लेवल बढ़ता है तो जिसके थ्रू क्या कहते हैं, जो ब्रेन में आपका जो डिफरेंट एंटीबॉडीज का जो ब्लड फ्लो होता है इसकी वजह से सीरियस ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। इसके बाद में आता है फ्लूइड बिल्डअप और स्वेलिंग ऑन द बेबी के एब्डोमेन में दूसरा फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है और स्वेलिंग आ सकती है। ट्रबल इन मेंटल फंक्शन, मूवमेंट, हियरिंग एंड स्पीच, ये प्रॉब्लम हो सकती है। सीजेरियस, एनीमिया, हार्ट फेलियर, ये सब प्रॉब्लम्स देखी जाती है इन द न्यूबॉर्न बेबी। डेथ ऑफ द बेबी कैन ओकर, डेथ तक भी हो सकती है, बट इन RH इनकम्पैटिबिलिटी के केसेस वही देखे जाते हैं रेयरली जहां गुड मेडिकल केयर नहीं होती, जहां गुड मेडिकल केयर होती है ये चीज क्योर की जा सकती है। So how can RH antibodies affect a fetus? During a pregnancy, RH antibodies made in a woman body can cross the placenta and attack the RH factor, I told you before. This can cause a serious type of anemia in the fetus. Fetus को एक anemia हो सकता है, in which red blood cells are destroyed faster than the body can replace them. तो फॉर एग्जाम्पल दूसरा जो ब्लड सेल आएगा वो मतलब उसको डिस्ट्रॉय करेगा, तो जो बच्चे का ब्लड सेल होगा वो जिस लेवल पे ग्रो कर रहा है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है और डिस्ट्रॉय ज्यादा अच्छे लेवल पे हो रहा है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एज वी ऑल नो। Without enough red blood cells, the fetus will not get enough oxygen. So this is a problem which can cause death to the fetus, बिकॉज जो बेबी का रेड ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन कैरी करेगा और वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इट कैन कॉज डेथ ऑफ द न्यूबॉर्न, और एनीमिया की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। RH incompatible can also cause jaundice in the newborn, as I told you before.
फिर आता है कैन RH antibodies develop when a pregnancy is not carried in the terms. So what if a woman get pregnant and due to which she can't conceive the baby for the long term and can't give a birth to the child? So yes, an RH negative woman also can make antibodies. So ऐसा है कि एंटीबॉडीज अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप के फीटस आपके अंदर है और आपका मिसकैरेज हो गया या इंड्यूस्ड अबॉर्शन हुआ, इटोफिक प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद भी आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना देती है और बॉडी बॉडी कैन कंसीडर दैट एज द योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, चाहे वो आपका बेबी कंप्लीटली आउट आया हो या नहीं आया हो, बॉडी कैन टेक इट एज अ फर्स्ट प्रेगनेंसी और वो एंटीबॉडीज बना देती है, जिसमें फ्यूचर को जो नेक्स्ट फ्यूचर फीटस होगा उसको रिस्क बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली. So, can RH problem is prevented? Yes, problems during pregnancy caused by RH incompatibility can prevent की जा सकती है. The goal of treatment is to stop an RH negative woman from making the RH antibodies in the first place. सबसे main goal ये होता है कि RH negative woman का जो blood है वो एंटीबॉडीज ना बना पाए, तो उसके लिए डॉक्टर उनको मेडिकेशन देते हैं. इसकी वजह से ऐसा नॉर्मली नहीं एंटीबॉडीज नहीं बनती और एक अच्छा हेल्थी बेबी कंसीव हो सकता है. This done by finding out if you RH negative early in the pregnancy. जब पहले मालूम पड़ जाएगा तो this can be cured and if needed during a medication to prevent antibodies from forming. Same अगर ढंग से medication मिलेगा तो it can be protected. So conclusion is that कि different RH antibodies can cause problem in fetus and in the mothers too. Different antibodies can cross through placenta and during miscarriages, and risk factor is more in the second pregnancy rather than the first pregnancy, and this can be cured easily in the countries which have a good medical facilities. So thank you, ma'am. I will conclude here.